Hello students, welcome to my channel. Today we are starting with class 6 civics chapter 5 rural administration. So लड़ाई चल रही है एक विलेज में. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land which is separated from his by a small boundary called a bund. तो मोहन है जो एक फार्मर है और उसकी जो फैमिली है वो एक स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड होल्ड करती है और उसके एकदम नेक्स्ट में बराबर में किसी रघु की एग्रीकल्चर फील्ड है और उन दोनों की जो सेपरेट है वो एक बहुत ही पतली सी बाउंड्री से सेपरेट है. One morning Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by few feet. By doing so, he managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. अब एक सुबह मोहन नोटिस करता है कि रघु ने उसकी फील्ड में वो आ गया. उसने जो एक स्मॉल बाउंड्री है उसको आगे बढ़ा दिया और अपना फील्ड बढ़ा लिया है उसने. मोहन वॉज एंग्री एंड ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. मोहन बहुत ही गुस्सा हुआ और थोड़ा डर भी गया. Raghu's family owned many fields and besides, his uncle was also the sarpanch of the village, but even so he plucked up courage and went to Raghu's house. वो डरा किस लिए? क्योंकि रघु की फैमिली बहुत सारे फील्ड्स को ओन करती है, रिच है उसकी फैमिली और उसके जो अंकल हैं वो सरपंच है, विलेज के सरपंच. बट फिर भी वो उसके घर पे गया. A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bund. He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up and they took him away. तो ऐसे जब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ तो रघु ने अपने किसी हेल्पर को बुला के उसको बहुत पिटवाया. फिर विलेजर्स आए. जब ये बहुत ज्यादा शोर शराबा देख के विलेजर्स आए तो वो मोहन को लेके चले गए. He was badly hurt on his head and hand. He was given first aid by one of his neighbors. His friend who also ran the village post office suggested that they go to local police station and file a report. उसकी बहुत ज्यादा चोट लग गई थी तो उसका जो फ्रेंड है जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है उसने ये सजेस्ट करा कि हम लोकल पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट फाइल करते हैं. Others were doubtful if this was a good idea, but they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. कुछ लोगों ने डाउट करा कि ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और कुछ इसका एंड रिजल्ट भी नहीं मिलेगा हमें. Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. कुछ ने कहा कि उन्होंने पहले ही कांटेक्ट कर लिया होगा रघु की फैमिली ने पुलिस स्टेशन को. After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. फिर एंड में ये डिसाइड हुआ कि वो जाएगा, मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा कुछ नेबर्स के साथ जिन्होंने इस चीज को विटनेस करी. Now area of the police station. अब पुलिस स्टेशन में क्या बात हुई? On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend some more money and go to main police station in the town?" एक नेबर ने ये सजेस्ट करा कि हम थोड़े और पैसे खर्च करके मेन पुलिस स्टेशन चले जाते हैं. It was not a question of money. We can register the case only in this police station because our village comes in this area of work, explained Mohan. अब ये हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि मोहन ने क्या कहा कि हम ये पैसे की बात नहीं है, हम जा भी सकते हैं, बट जहां पे जिस एरिया में कोई चीज होती है, कोई लड़ाई होती है, तो उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में हमें कंप्लेन करनी होती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी और पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेन नहीं कर सकते. Every police station has an area that comes under its control. All people in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. तो हर एक पुलिस स्टेशन का एक अपना एरिया होता है जिसमें वो कंप्लेन फाइल करते हैं, जिसको वो कंट्रोल करते हैं फॉर दिस इंसिडेंट्स. It is responsibility of police at that station to inquire, to investigate and take action on the cases. और उसी पुलिसमैन की मतलब ड्यूटी होती है कि वो उस वाले एरिया में वो ही देखे.
Now the work at the police station. When they reached the police station, Mohan went to person in charge, which is SHO, means स्टेशन हाउस ऑफिसर. जब वो पुलिस स्टेशन गए तो वो SHO के पास गए. तो SHO की हमें फुल फॉर्म याद रखनी है, स्टेशन हाउस ऑफिसर. एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और उसने बताया कि क्या क्या हुआ. he also said that he wanted to give the complaint in writing, और उसको राइटिंग में करनी है कंप्लेन. The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but SHO did not believe him. पर SHO ने उसने कहा कि उसको रिटन में कंप्लेन फाइल करनी है, बट SHO ने उसको रूडली मना कर दिया कि वो इतने बेकार से केस के लिए टाइम अपना वेस्ट नहीं करेगा और इन्वेस्टिगेट वो इस केस की नहीं करेगा. फिर उसने अपने इंजरीज भी दिखाई मोहन ने, बट SHO ने नहीं माना. Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went and called his neighbors into the office. मोहन बहुत ही मतलब पजल हो गया, मीन्स कि ये क्या हुआ कि इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं रिकॉर्ड करी मेरी. उसने वो बाहर गया, उसने अपने नेबर्स को ऑफिस में बुलाया. दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन beaten up in front of them and had they not rescued him he would have injured very seriously. और नेबर्स ने भी कहा कि हमने विटनेस करा है और बहुत बुरी तरीके से मारा है इसको. दे इंसिस्टेड दैट द केस शुड बी रजिस्टर्ड. उन्होंने इंसिस्ट करा कि केस को आपको रजिस्टर करना चाहिए. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. तो जब बहुत सारे उसके नेबर्स कहने लगे, विलेजर्स कहने लगे, तो SHO माना कि ठीक है, तुम अपने मोहन से कहा कि तुम अपनी कंप्लेन लिखो और नेक्स्ट डे कांस्टेबल चेकिंग के लिए, इन्वेस्टिगेट के लिए जाएगा. Now, maintenance of land record. You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields has been shifted. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns what land in the village? Let's find out how this is done. कि अब अगर थोड़ा और हम अलग इस लाइट में देखें, अलग लाइट में देखें इस केस को, तो रघु और मोहन को आराम से पीसफुली ये कर लेना चाहिए था, निपटारा कर लेना चाहिए था, बजाय ये डिस्प्यूट करने के. कि ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि हमें बिना लड़ाई के पता लग जाए कि कौन सा एरिया किसका है? ऐसा कोई मेंटेन होता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन होता है जो हमें बता सके? नाउ measuring land and keeping land records is the main work of पटवारी. अब कौन करता है ये लैंड मेजर करना और उसका रिकॉर्ड करना? ये करता है पटवारी. The patwari is known by different names in different states. In some village, such officers called लेखपाल, in other कनुंगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एटसेट्रा. और ये जो पटवारी है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी. हम इस ऑफिसर को पटवारी कहते हैं. Each patwari is responsible for a group of villages. The patwari maintains and updates the record of village. ये पटवारी क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा लैंड किसका है, कितना लैंड है किसका. The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of records kept by patwari. Now the patwari usually has ways of measuring agricultural fields. In some places a long chain is used. In above instance, the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of field has been changed. तो पटवारी के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिससे वो मेजर करता है एग्रीकल्चर फील्ड. किसी किसी केसेस में लॉन्ग चेन्स वो यूज करता है मेजर करने के लिए. इस ऊपर वाले केस में, मोहन और रघु के केस में क्या हो सकता था कि पटवारी आके दोनों के लैंड मेजर कर लेता और वो अपनी रिकॉर्ड से मिला लेता, जो उसके पास पहले से रिकॉर्डेड है उससे वो मिला लेता. अगर सपोज वो सेम आते तो मीन्स कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है बाउंड्री से, पर अगर वो नहीं आते तो मीन्स किसी ने चेंज करी है बाउंड्री.
The patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. तो हमें ये और पढ़ना है कि पटवारी का और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. अब जैसे क्रॉप हुई तो वो क्रॉप के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, लैंड टैक्स जो होता है. तो पटवारी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कलेक्ट करे लैंड रेवेन्यू फार्मर से और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट को कि कौन सी क्रॉप कौन से एरिया में ग्रो हुई है. दिस इज डन from the records that are kept, and this is why it is important for the patwari to regular update this. रेगुलरली अपडेट करा जाता है क्योंकि कभी कोई क्रॉप यहाँ पे ग्रो हो रही है बट कुछ टाइम बाद कोई और क्रॉप ग्रो हो रही है, तो पटवारी को ये चीज रेगुलरली मेंटेन करनी पड़ती है, रेगुलरली उसको अपडेट करना पड़ता है. फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन में डिग अ वेल समवेयर. कुछ भी कर सकते हैं लोग वहां पे. एंड कीपिंग ट्रैक समवेयर. From this we are here, and keeping track of all this is the work of revenue department of the government. और ये revenue department करता है. क्या करता है कि फार्मर्स कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कहीं वेल तो नहीं उगा रहे, और कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होता है ये. सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क. और सीनियर पीपल जो पटवारी से ऊंचे जो पद पे हैं वो उसका पटवारी का वर्क सुपरवाइज करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी gives you the information regarding the map given below. It identifies which plot is owned by whom. Look at both the records in the map and answer the questions given below regarding Mohan's and Raghu land. तो ये हमारा एरिया है कि कितने एरिया में उनका लैंड है, कितने एरिया में उनका लैंड है. सो मोहना सन ऑफ राघुराम एंड मध्य प्रदेश. तो हमें मोहन का देखना है, इसका 0.75 है और जो रघु का है वो 3.0 है. ये सोयाबीन उगाता है, ये सोयाबीन व्हीट इरिगेटेड. एरिया इनका इतना है, मतलब 0.75 है कि टोटल एरिया, बट ये क्रॉप कितने में कल्टीवेट कर रहे हैं विच इज 0.75 और ये 2.75 में कर रहे हैं जिसमें सेकंड क्रॉप ग्रोन 1.75 एंड एरिया नॉट कल्टीवेटेड इज 0.25. ठीक है. तो अब है who owns the land south to the Mohan's field. अभी हमें एक मैप दे रखा है, so you should solve these questions on your own. If you had any doubt regarding this, do comment below, then we will solve together. Now all states in India are divided into districts. हमें पता है कि हर एक स्टेट में अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट होती है, which we have learned in previous chapters. For managing matters relating to land, these districts are further subdivided. पहले तो हमारी कंट्री है, कंट्री हमारी स्टेट्स में डिवाइडेड है, स्टेट्स हमारी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये डिस्ट्रिक्ट्स भी काफी चीजों में डिवाइडेड हैं, बाकी सब डिवाइडेड हैं. These subdivisions of a district are known by different names such as tehsil, taluka, etc. At the head is the district collector, and under her are revenue officers which are known as tehsildars. तो अब हम ये मार्क करेंगे that कैसे सब डिवाइड करते हैं कि तहसील होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे हमारा तहसील होती है, तालुका होता है, which depend on different डिस्ट्रिक्ट से उससे वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा नाम रखते हैं. डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं एक ही जाने के, लाइक तहसील एंड तालुका. सो सबसे ऊपर हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके नीचे हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिसको हम तहसीलदार कहते हैं. दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स. वो क्या करते हैं, तहसीलदार क्या करते हैं, वो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वो उसको सुनते हैं. They also supervise the work of patwaris and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. वो अच्छे से पटवारी के वर्क को
सुपरवाइज करते हैं और देखते हैं कि अच्छे से जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करे गए हैं या नहीं करे गए हैं. They make sure that farmers that easily can obtain a copy of record. Students can obtain the caste certificates. The Tehsildar offices where land disputes are also heard. तो बहुत चीजें जो तहसीलदार से वो देखते हैं, तो वो पटवारी का वर्क सुपरवाइज करते हैं कि वो अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा. स्टूडेंट्स का देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स को अपने कास्ट सर्टिफिकेट मिले हैं या नहीं मिले हैं. तो और जैसे कोई डिस्प्यूट हुआ, जैसे अभी हुआ रघु और मोहन के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो ये कहाँ पे सॉल्व होता, ये होता तहसीलदार के ऑफिस में ही ये सॉल्व होता, ये डिस्प्यूट सुना जाता. नाउ फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि कैसे वो मैप होता है उनका. दे हैव द राइट टू दिस इंफॉर्मेशन. दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस. तो फार्मर्स अपनी कॉपी ले सकते हैं अगर उनको कुछ देखना है, और उनके इसके लिए उनको एक स्मॉल फी लगेगी. However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face problem to get it. पर कभी कभार क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन अच्छे से सही से या टाइमली अवेलेबल नहीं कराते, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार. In some states, records are now being computerized and also kept at panchayat office so that they are more easily available and are regular updated. पहले तो हमारा पेपर फॉर्म में होता था, बट अभी कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटराइज हो गया है, और हर एक पंचायत ऑफिस में ये रखा जाता है ताकि इजीली अवेलेबल हो और रेगुलरली अपडेट होता रहे. When do you think farmers may require a copy of this record? Study the following situations and identify the cases in which these records would be necessary. अगर a farmer wants to buy a plot of land from another, तो उसको चाहिए कि कितना एरिया में उसका लैंड है, रिकॉर्ड के हिसाब से वो उल्टा सीधा कुछ भी कह सकता है सामने वाला. Now a farmer wants to sell her produce to another. अब फार्मर लोन चाहिए उसको अपने उस पे, तो उसको चाहिए, बैंक वाले को जरूरी चाहिए कि कितना लैंड है तुम्हारा, एकदम रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है. नाउ वो फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स, चाहिए तो देखना है कि कितना लैंड है, उसके हिसाब से उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए. और अगर उसको अपने फार्मर को डिवाइड करनी है अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में, तो उसको देखना पड़ेगा कि कितनी टोटल एरिया है और कितने बच्चे हैं, उनमें कितनी कैसे डिवाइड होगी. नाउ अ डॉटर्स विश. Father inherited our house from his father and everyone says he will leave it to the brother. And what about me and my mother? To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. But I really want a place of my own, no dowry of silk and gold. So this is a daughter's wish. Now a new law. हिंदू सक्सेशन ऑफ डॉटर, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि डॉटर अपने फादर के उसमें शेयर मांग रही है कि मुझे भी चाहिए. अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005. अब इसमें क्या है, ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मेन. वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज अ पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड. तो वो अगर हमें देखना है कि फार्मर किसका है, तो हम जनरली एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी मैन का है. क्यों? क्योंकि वुमेन जो है वो काम तो कर रही है उसमें, बट वो ओन नहीं कर रही वो. टिल रिसेंटली in some states Hindu women did not get a share in family's agricultural land after the death of father. His property was divided equally only among his son. तो कई कई स्टेट्स में देखा गया कि हिंदू डॉटर्स को अपना जो शेयर है एग्रीकल्चर फील्ड में वो नहीं मिल रहा. जैसे ही उनके फादर की डेथ होती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो लैंड है, वो उनके बेटों में डिवाइड होता है, सन्स में डिवाइड हो जाता है. रिसेंटली द लॉ वाज चेंज. अब रिसेंटली एक लॉ चेंज हुआ है. इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड. द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. अब क्या है कि हर किसी को, सन को, डॉटर को, हर किसी को मिल पाएगा, मदर को अपना इक्वल शेयर मिलेगा. और ये लॉ
हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में अप्लाई होगा. This law will benefit a large number of women. For example, Sudha is eldest daughter of agricultural family. She is married and lives in neighboring village. After her father's death, Sudha often comes to help her mother with the farming work. Her mother had asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record. So Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend her share of the land. तो ये एक हमारा एग्जाम्पल था कि कैसे बेनिफिट कर सकता है ये वुमेन को. Now other public services are survey. This chapter has looked at some of the administrative work of government, especially for rural areas में हमने देखा कि district, tehsil, then tehsildar. The first example related to maintaining laws and order and the second to maintaining land records. सबसे पहले हमने देखा था पुलिस, फिर हमने देखा पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, और सेकंड हमने देखा पटवारी जो मेंटेन करते हैं लैंड रिकॉर्ड्स. In the first case, we examined the role of police and in second of patwari. This work is supervised by other people in the department such as tehsildar or the superintendent of police. ये दोनों ऊपर हाई पोजीशन पे आ गए कि मतलब कौन इनके वर्क को सुपरवाइज करता है. तो पुलिस डिपार्टमेंट में कौन करता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. और पटवारी का वर्क कौन करता है? तहसीलदार सुपरवाइज करते हैं. We have also seen how people use these services and some of the problems that they face. These services have to be used and made to function according to laws that have been framed for them. You have probably seen many other public services and facilities provided by various departments of the government. Now you have to do this exercise on your own, which is list public services in village area as a milk society. ये आपको सर्च करके खुद अपने आप से लिखने हैं. Now this is public service. Did you notice about their work? So we will first rotate it. Public service. What did you notice about their work area covered? What do they need to do in order to use this facility? Problems faced by those managing the service, problem faced by people, and improvements that can be made. तो जब आप ये काम कर लोगे तो आपको इसका रिकॉर्ड बनाना है. So with this, a chapter is completed. If you had any doubt regarding this chapter, do comment below in comment box. And please like this video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.